Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. My dear fellows and students and colleagues, and those who are appearing in the undergraduate examination or the postgraduate examinations, we are actually dealing with the subject which is called infectiology, that is the infection and the disease. And you know that it is a big chapter, and it covers a lot of the microorganisms. And many of the students, they just go through this very important module, and after say about 3 months they forget everything. Even they don't know about the gram-positive organisms, gram-negative organisms. Why it is important to know the gram-positive organisms and gram-negative organisms, and why it is important to know that these are bacteria, foci and bacilli, and why it is important to know that they are catalase positive or oxidase positive, and why they are. This is important to know that they are anaerobic, facultative anaerobic or aerobic organisms, and why it is important to know that they can form the spores or not. And this is actually the play. Simple as that. If you know this properly, you can understand the disease, the pathogenicity of the organism. Previous lecture of the tutorial I have given you a bird's view of the gram-negative bacilli, what is their importance. And the gram-negative bacilli, if I will talk about it, and every disease will be taken separately in a serious manner. Because if you have given an answer in the postgraduate examination, for example, you said that it is splenomegaly and fever is there, and the person belonging to Afghanistan or person belonging to the area, hilly areas of Balochistan, you said that it is possibly of PUO of probably it is salmonellosis. To justify, you have to justify your diagnosis. Another student say that it is brucellosis. Why you said brucellosis? Definitely you have to justify clinically. What is the difference between the salmonellosis and the brucellosis? Also, somebody say that it is not this. It is tuberculosis, mycobacterial infection. Justify it then. So everything should be known to you, then habitat, and how they penetrate, the pathogenicity, the clinical features, the diagnostic criteria, or diagnosis, lab investigations, and how will you go for the management, and what are the preventive measures, and what are the recent advances for this particular disease which you are talking about. If you can discuss these points, you will gain all the marks, 10 out of 10. My many co-examiners have given 10 marks out of 10. I have also given 10 marks out of 10 in the long case, because he has justified all the things and he has discussed all the things related to that disease, not outside the disease, on the burning topic and the patient, focusing on the patient only, which is given to us. So this is, if you don't know the background knowledge, you cannot discuss it. The message or lesson gained by me is this: if you know the subject well, then nobody can challenge you. Very difficult. There are many examples which I have gone through where I was writing paper, in clinical papers. I have written actually about 17, 18 papers in my life. And most of the papers are written as the number 1 author. And I myself has written these papers.
To write a paper of something is an honor of a person, because it will be discussed in the editorial board, and they will point out the mistakes, and then you learn it properly. One of my students has given a topic. He has chosen topic. He is a clinical hematologist, and he has chosen the topic of vitamin B12 deficiency in Tharparkar. He went to Tharparkar, his village and other villages, and collect the samples very honestly from all the people about the population size of 400 to 500 people, because the budget is limited, so he can't do more than that. So he has done the basic investigation with vitamin B12 levels, and the data was collected, and I was co-writer with him. He honestly collected the results, although there are definitely results are very astonishing to us. But when he was facing the examiner in the MPhil to defend his paper, there are many objections. I was with him. He answered it. That part of the question which he has not answered, I answered it. I was a co-writer, and I was the clinical supervisor of that person. After many arguments, the two examiners, one from the Aga Khan University and one from the Bakai Medical Institute, they actually agreed with me that the honesty is the best policy. The person has written very honestly the findings. He had not manipulated, and that is the key point favoring him. And he was given, after some correction, the MPhil in hematology, clinical hematology, and is one of the best paper written ever on this subject. So he will be regarded as one of the experts in the B12 deficient people. He was my student. He has done it. So please try to understand that the thing is this: if you want to discuss a disease, it should be perfectly studied, and you should know the background. For example, I want to discuss salmonellosis. I am Professor Sridhari Adar, and I am representing as visiting professor of internal medicine. Salmonellosis, because Salmonella is a genus actually. It is a genus, and it has got a lot of species, and then after species, you go for the groupings of typing or serotypings, etc. In the case of the epidemiology is concerned, it is a genus Salmonella. It is a symptomatic infection caused by the bacteria of a Salmonella type. If you say the Salmonella, it doesn't mean typhoid fever, because Salmonella species are many fold, and that is why you will say the Salmonella, it doesn't mean enteric fever. It is also a food-borne disease and are defined as a disease usually either infectious or toxic in nature, caused by the agents that enter the body through the ingestion of the food or water. The most common symptoms: diarrhea, fever, abdominal cramps, and vomiting. It is a part of what is called as the food poisoning. Symptoms typically occurs between 12 hours, so about 10 to 12 hours is the incubation period. For example, somebody has taken the food containing the chicken which was fried, and it was enriched with the other things, and it will be decorated in the restaurant as a, you can say it is a fried chicken with potato chips.
and he developed abdominal cramping and vomiting after 10 hours, 8 to 10 hours. The source is actually, here is the animal origin. You have taken the chicken. Chicken, you know that the cheap chickens will be sought out by the restaurants, not you have already, you go to the market and just purchase it after the proper slaughtering of the chicken, and then you bring it to the home. In many, for many years it is the better usually, but for the restaurant people, the cheapest chicken has been taken, and that will be the source of infection. And it may be 36 hours after exposure. Delayed, it may be delayed a food poisoning. Means after 1 day it is possible. And it may last for 2 to 7 days. Occasionally, more significant disease can result in dehydration depending upon the lethal dose. And the old, young and others with a weakened immune system, they are target people, are more likely to develop severe type of disease, severe salmonellosis. A specific type of salmonellosis can result in the typhoid fever. There is only what is called as the typhoidal salmonella, and there are non-typhoidal salmonella. So they are talking about the typhoidal type of a salmonella, causing entire group of fevers, that is typhoid fever or paratyphoid fever. There are 2 species of the salmonella. Other than that speaking, there is Salmonella bongori and Salmonella enterica is a typhoid medium at one time, and with many subspecies with this. However, subgroups and serotypes within a species may be substantially different in their ability to cause the disease. So there are epidemiologists which will actually classify which is subspecies, and then what are the subgroups and what is the seroverse. This suggests that the epidemiologic classification of organisms at the subspecies level may improve the management of the salmonellas and similar pathogens. So epidemiologists had a very higher role in the detection of the disease at that part and combating the disease at the specific area, and restrict to the disease at the specific area. So there are 2 types of salmonella. It means that one is typhoidal type of a salmonella, one is non-typhoidal salmonella. Both can cause the gastroenteritis, remember. But usually the non-typhoidal salmonella are the commonest problem going on in our city. One of the commonest problem. Usually they cause the diarrhea, may cause fever, may cause dehydration very, very quickly in the sensitive subjects talked already. So this is very important food poisoning of the Salmonella bongori or typhimurium or Salmonella enterica. And there are other organisms as well, and they are subspecies. Habitat means the way they are living now. Both vegetarian and non-vegetarian population are susceptible. अब जितना non-vegetarian, non-veg means कहने के बोलते हमें तो कोई तकलीफ होती नहीं है क्योंकि हम तो non-vegetarian नहीं. Because they will also take something which is, as you see, the milk. They can take eggs, not the animal. It is a part of the animal source. They can take water. They eat the fruits which are rotten, etc. So the non-vegetarian can be infected. Both vegetarian and non-vegetarian population are susceptible to salmonella infection because of the contaminated meat and milk. Infection is usually spread by eating contaminated meat, eggs, water, or milk. Remember, MEWM. Meat, eggs, water, milk. And this is the important part, talking about this thing. The egg से ज़्यादा तो प्योर चीज़ होती कोई नहीं है.
अब मुझे ये बताइए, इसमें मिलावट आप कहाँ से करेंगे? आपने घर में मुर्गियाँ पाली हैं, उसके एग्स होते हैं। अगर आप ये कहें कि जी पुराना मुर्गी है वहाँ पे कुछ किया गया है, एग से प्योर फॉर्म तो आपको फूड मिल ही नहीं सकता। उसमें ये कहाँ से आ गया? इंतहाई ख़राब कंडीशन है, अंदर बिल्कुल बंद है, शेल बंद है, ऑक्सीजनेशन बहुत ही ना होने के बराबर है। जो कुछ भी ऑक्सीजनेशन है उसको कंज्यूम कर लेगा और बाकी फिर उसको ज़िंदा रहने के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन होता है ऐसा। आइसक्रीम जो होती है उतनी हाई यानी लोअर डिग्री पे बनाई जाती है, 3 डिग्री, -3, -5, -10। स्कीमोस जो है ना उनके अंदर भी पॉइजनिंग हो जाती है। अब स्कीमोस के अंदर बताइए, ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं वो तो बिल्कुल ही जमी हुई चीज़ होती है वहाँ, तो वहाँ तो ये होने नहीं चाहिए था। इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि एग्स में भी होता है ये, ख़ास तौर पोल्ट्री के आइटम्स जो हैं उनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ख़ासतौर पर नॉन टाइफॉइडल साल्मोनेलोसिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात हो रही है। कोई ये कहेगा जी मैंने तो एग खुद ही उठाया था अपनी मुर्गी का और उसको बॉयल किया और मैंने खाया, उसके बाद मेरी तकलीफ हो गई, तो साल्मोनेला कहाँ से आ गया उसमें? अब इसकी आप वो देखिए, पावर देखिए, लिविंग पावर, हैबिटेट, कि वो जो है एग के अंदर भी रह जाए, ऑक्सीजनेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने उसे फ्राइड किया है बहुत अच्छी तरह से, एग को बॉयल किया था 110-120 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुसलसल बॉयल किया था, तो फिर उसके बाद हीट इतनी जनरेट हो गई थी कि अगर था भी तो मर जाना चाहिए था, नहीं मरा। और फिर वो -20-30 डिग्री होता है यहाँ पे टेम्परेचर आइसलैंड में और जो साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में कनाडा है उसके एरिया दर, वहाँ पे जो बिल्कुल कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे तकरीबन आप सुने महीने 1 महीने सिर्फ जो है धूप निकलती है, तो दे आर 100% अंडर द आइस, अराउंड आइस, वहाँ पे भी ये पॉइजनिंग हो जाती है। इतना कैल्सिट्रेंट जो है ना टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा ये, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये चीज़ अगर आप समझ लेते हैं बात को, तो फिर आपकी बात समझ में आ जाएगी। अदर फूड में स्प्रेड टू डिजीज दे हैव कम इनटू कांटेक्ट विद मेनूर, तो मेनूर का है के साथ है, मिसाल के तौर पे पालक है, वो तोड़ते हैं आप पालक को, pick it up these and about the other vegetables which are living on the ground parallel to the ground, बेल जो होती है, वहाँ मेनूर भी होता है। तो मेनूर जो होता है उसके अंदर जो है कल्टीवेट बहुत अच्छा होता है। अब पालक के पत्ते अगर आपने नहीं धोए सही तरीके से, अलग अलग धोने पड़ते हैं, या भिंडी है मिसाल के तौर पर, छोटा पौधा होता है उसका, वो जो है वो गिरते रहते हैं, उसमें जो उठाते रहते हैं वो उसकी भिंडियाँ, फिंगर, लेडीज फिंगर को, और वो फिर सही तरह धोते भी नहीं है। खासकर रेस्टोरेंट वाले तो इतना धोएंगे भी नहीं कि एक एक भिंडी को अलग अलग धो, वहाँ से भी आ जाता है ये। A number of pets including cats, dogs and reptiles can also carry, ये स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज़ को, कि कैरी कर रहे होते हैं अपने अंदर, माउथ में भी होती है, स्किन पे भी होती है। रेप्टाइल जो आपके आते रहते हैं, डॉग्स आप पालते हैं, कैट्स आप पालते हैं, ज़ूनोटिक डिजीज़ भी हो सकती है, बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग फ्रॉम दीज एनिमल्स। तो ज़ूनोटिक भी हो सकती है या नॉन ज़ूनोटिक भी हो सकती है। अभी इस किस्म की टर्मिनोलॉजी आप अगर किसी एग्जामिनर को बताएंगे तो फिर आपके नाकामयाब होने के चांसेस तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपको बिल्कुल बात पता है अच्छी तरह इसकी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। ये देखिए, इसको इन्होंने हाई पावर माइक्रोफिल्म में बताया है। ये देखिए, इसके पिंक कलर को देखिए, फ्लॉरिश कर रहा है, और इसके अंदर इसका मीडिया आप देखिए, ये नेचुरल मीडिया है, और ये जो है मीडिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो जगह है जो प्लांटेशन है, उसके अंदर ये ग्रो कर रहा है। इसके अंदर आप ये देखिए कि ये देखिए आपस में इनको फ्लैजेलेट है, ये एक दूसरे के जेनेटिक मटीरियल को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके अंदर भी मौजूद है, इसके साए भी मौजूद है। कंटेमिनेटेड फूड सोर्स की जिसकी बात की रिपीट करें इसको, तो कंटेमिनेटेड फूड ऑफ्टन हैविंग
नो अनयूजुअल लुक और स्मेल। ज़रूरी नहीं है कि स्मेल उसकी जो है ना वो उसकी वजह से आप छोड़ देंगे, नहीं। आपको बिल्ली तो नहीं है कि उसको तो पता होती है कि ये चीज़ मुझे खाऊंगी तो नुकसान हो जाएगा। या डॉग सूंघता है पहले फिर खाता है। इंसान की हिस्सा है, मान ले बिल्कुल तो सूंघना चाहिए भी। जायका ख़राब हो जाए ना, अगर असल बात अब आगे चले ना, आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टंग से, कि पहले जो जायका आप था फूड का अब वो जायका नहीं रहा, तो आप रिस्क क्यों ले रहे हैं भाई इसको? या आपने रेफ्रिजरेशन कर दिया है कोई 8 महीने पहले, वहाँ से जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त निकाल निकाल के खा रहे हैं, और बिजली भी चली जाती है, अक्सर चली जाती है। मैंने तो ये कहा कि ये कल्टीवेट हो जाता है स्कीमोस, मैंने बोला ग्रीनलैंड, तो फिर आप किस बला का नाम है कि जो आपने रेफ्रिजरेशन किया था उसके अंदर भी ये फ्लॉरिश कर सकता है। अगर कंटेमिनेट हो गया तो फ्लॉरिश कर जाएगा। तो पुअर किचन हाइजीन है स्पेशली प्रॉब्लमेटिक इन इंस्टीट्यूशनल किचन एंड रेस्टोरेंट्स बिकॉज दिस कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक। ये भी बात सही है, आपके यहाँ मैसेज होते हैं, आप जो है अपने जाते कैंटीन में जाते हैं वहाँ भी खाते रहते हैं, आप चेक करते हैं अंदर जो है लोग जो मौजूद हैं उनको चेक किया जाता है, और अगर चेक करने का आ भी है, फूड इंस्पेक्टर होता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, तो उसको चाय पिलाते हैं और चीज़ें खिलाते हैं और उसको 2000-3000 दे के रुख्सत कर देते हैं। करप्शन इसके अंदर है मुल्क में। हालांकि उनको पकड़ लेना चाहिए, उनको सैंपल लेने चाहिए थे, ले जाना चाहिए था। Excretion from the other sick or infected bird is apparently clinically healthy produced in animals. So not especially dangerous are caregivers and animals. अब एनिमल्स जो है ना वो ज़ाहिर है आपके इन्वायरमेंट में तो है, आप उनसे प्यार भी करने और करना भी चाहिए। और पीपल भी हैं जो कि लुकिंग हेल्दी हैं लेकिन वो क्रॉनिक कैरियर्स हैं, वो हाथ नहीं धोते, और इस तरह से जो है ना वो फीको ओलर रूट पॉसिबल हो जाता है। Polluted surface water and standing water such as shower hoses or unused water dispensers. अब पानी लाया आपने डिस्पेंसर पे लगा दिया, आपने 6 महीने बाद घर में वापस आए, आप गए हुए थे अमेरिका, उसी पानी को इस्तेमाल कर डाला आपने, तो ये वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर के अंदर भी इसकी ग्रोथ हो जाती है। ये बताने का मकसद था। अनहाइजीनिकली थॉड पोटरी, द मेल्ट वाटर कंटेन मैनी बैक्टीरिया। इसको आपने हाइजीनिकली इसको नहीं थॉ किया फूटी आइटम को, फिर आपने बाद में इस्तेमाल किया उसको, तो वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा मीडिया दे देता है ग्रोथ का। अनएसोसिएटेड विद रेप्टाइल्स, पेट टॉर्टॉइस घर में रखते हैं, टर्टल्स रखते हैं, स्नेक्स रखते हैं, अग्नास रखते हैं, और एक्वाटिक टर्टल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें घर में मछलियाँ पाल रहे होते हैं, तो उनका भी रखने का तरीका कार होता है। वाटर चेंज किया जाता है, उनकी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो, फिर जो एंटीसेप्टिक जो आप डालते हैं उसे वॉश किया जाए, तो फिर तो ये बच जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कौन बिल्ली को जो है ना या कुत्ते को जो है वो हाइजीनिकली जो है बात देता हो, बहुत कम। कौन वैक्सीनेशन देता है? कोई भी नहीं देता। एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग, दे आर ऑल्सो कैरियर्स। कुछ जगहों पे तो इतने ज़्यादा फ्रॉग्स होते हैं और कुछ जगहों पे तो फ्रॉग खाए जाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं लोग, और फिर वहाँ पे पॉइजनिंग होती है उनको ज़बरदस्त। मलेशिया में चले जाएं और फिलिपाइन में चले जाएं आप, चाइना में, कोरियंस तो इसके आशिक़-ए-ज़ार हैं, टर्टल्स के भी, इसके भी, और छिपकलियाँ जो खाते हैं वो खा जाते हैं, स्नेक भी खा जाते हैं, वो हर चीज़ खा जाते हैं। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि यही लोग हैं जो एंड ऑफ द वर्ल्ड में बरामद होंगे, ठीक है ना, जिसका जिक्र कुरान में किया गया। प्रोबेबली, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो अभी भी इतने पावरफुल हैं। अब देखिए तो आने वाले दिनों में 20-25 साल में वो उनकी पावर कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी। वही है जो एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा, उसका ही जिक्र कुरान में भी किया गया है। उनकी फैसिलिटी देखें, लेकिन वो खाते क्या चीज़ें, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तरह देखें उनका, वही समझते हैं हम इस वजह से ताकतवर है। ये है असल में प्रिवेंशन फ्रॉम द फार्म
फार्म हाउसेस हैं, वहाँ से जो चीज़ें सप्लाई हुई उनके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है कि वहाँ पे जो है ना आपके पास जगह है जहाँ आपने पोल्ट्री फार्म बनाया, उसका कोई अता पता नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है। फिर स्टोरेज होती है, जो चीज़ें हैं सेलेक्ट की जाती हैं, फिर वो गाड़ी ट्रांसपोर्ट करती है, फिर वो वहाँ लेके आती है जिन लोगों ने इन्हें बनाया, तो फिर वो पैसे इसके तय होते हैं। फिर वो मुर्गे वहाँ से उठा के आप पिंजरों में बंद करते हैं, फिर आप हलाल कराते हैं, या हलाल नहीं कराते तो कंपनी हलाल करके देती है आपको, और फिर वो सब कुकिंग होती है। उसकी कुकिंग करने वाला कौन है हमें नहीं पता। उसके बाद वो टेबल पे आपके सामने बड़ी अच्छी तरह से पेश कर दिया जाता है और आप इसे खा लेते हैं। और अगर साल्मोनेला था इसमें मौजूद और इन्फेक्टिव डोज में था तो डायरिया हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। जबकि इतनी अच्छी जगहों की फूड पॉइजनिंग आपको बता दूं जो आप समझते हैं कि वो रेस्टोरेंट नामुमकिन है। पर कॉन्टिनेंटल की फूड पॉइजनिंग मैं सुना सकता हूँ आपको, शेराटन की मैं बता सकता हूँ। मेरे पास आए हैं किसी KFC के आए हुए हैं, मैकडोनल्ड के आए हुए हैं, वहाँ पे जब हो सकती है उनसे फूड पॉइजनिंग, तो फिर वहाँ तो बहुत सस्ती होती है, फिर भी वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। असल में होता ये है कि ये पूरी चेन है, उसे तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ था। जो कुकिंग करने वाला बंदा तो यहाँ पे था, उसको तो नहीं मालूम है कि जो पोल्ट्री फार्म से जो आया है मटीरियल वही इन्फेक्टेड है, उसको तो पता ही नहीं है, उसको क्या मालूम। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया कैन सर्वाइव फ्रॉम सम टाइम विदाउट अ होस्ट। इनके लिए होस्ट नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है। दे आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन पोल्यूटेड वाटर with contamination from the excrement of the carrier animals being particularly important. अब ये जो जानवर हैं जहाँ से पानी पी रहे होते हैं और वहीं पर जो है ना वो मनूर भी पड़ा होता है उनका, और उसके नीचे अगर चलते हैं दूसरी साइड पे तो वहाँ से भी लोग नहा रहे होते हैं, वहाँ से पानी भी जमा करते हैं, पी लेते हैं। अगर वो इम्यूनिटी इम्यूनाइज हो जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो इतना मसला नहीं है। लेकिन नॉन इम्यूनेटेड पर्सन अगर ये काम करेगा बड़ी सीवियर किस्म की फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। द यूरोपियन फूड सोसाइटी अथॉरिटी हाईली रिकमेंड दैट व्हेन द हैंडलिंग रॉ टर्की, जो कि जानवर है उसका मीट इस्तेमाल करते हैं ये लोग, क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा करते हैं। कंज्यूमर्स एंड पीपल इन्वॉल्व इन द फूड सप्लाई चेन शुड पे अटेंशन टू द पर्सनल एंड द फूड हाइजीन, दोनों को आप इम्पोर्टेंस है। तो उनका जो है ना एग्जामिनेशन करना चाहिए ना, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उससे आपको पता चलेगा कल्चर से कि ये स्पीशी है या नहीं है। और इसी तरह फूड लेकर उसको एग्जामिन करना पड़ता है, कल्चर करना पड़ता है, और फिर वो पता चलता है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें पाया जाता है। कोई करता है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि 5 स्टार होटल में अगर होता हो, वो इसलिए होता है कि उन्हें अपने आप को बचाना होता है, उन लोगों का कैंसिलेशन हो जाता है, बाकायदा उनके लोग मौजूद होता है, स्टाफ होता है, वो बाकायदा इसको करता है, पर्सनल का भी लेता है सैंपल और फूड का भी लेता है, हर महीने बाद 2 महीने बाद ही करते रहते हैं। An estimated about 14,200 Americans are infected each year with the salmonella. एग्जैक्ट फिगर पाकिस्तान में कितनी है हमें नहीं पता। कहाँ से आया है साल्मोनेला एंटेराइडिस? फ्रॉम द चिकन एग्स, एंड अबाउट 30 इनमें से 1,42,000 में से 30 की डेथ हो गई थी। अब 30 अमेरिकन मर जाएंगे और 30,000 पाकिस्तानी मर जाएंगे तो बराबर है। जब यहाँ 30,000 मरेंगे तो फिर ख्याल आएगा गवर्नमेंट को यार 30,000 आदमियों की डेथ हो गई। लेकिन वहाँ 1-2 आदमी भी मर जाए तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दवाएं बैन कर देते हैं जी। 1% अगर फर्ज करें उनको मिल गया एडवर्स इफेक्ट लिवर के ऊपर, हालांकि सेंसिटिविटी बहुत अच्छी दवा की, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल मेडिसिन है, लेकिन वो उसको बैन कर देते हैं। अभी रेनाडिडिन मिसाल के तौर पर अभी भी जो चल रहा है किस्सा, वो रेनाडिडिन का झगड़ा चल रहा है। क्या ये प्री कैंसरिक एजेंट है? अगर ये प्री कैंसरिक एजेंट है, मेरा सवाल उनसे ये था कि उसी ग्रुप की दूसरी दवा जो फेमेटिडिन वो तो नहीं है, तो आपने रेनाडिडिन को क्यों कहा? इसलिए कहा होगा कि जो स्टॉक जो होगा जहाँ पे ये वाक़या हुआ होगा तो वो कंटेमिनेट हो गया होगा। तो आपने रेनाडिडिन इतनी अच्छी दवा थी वो उसको बैन कर दिया।
उसके बाद आता है शेल ऑफ द एग मे बी कंटेमिनेटेड विद साल्मोनेला बाय फीसेस और एनवायरनमेंट, तो शेल है उसका, और इंटीरियर यॉक मे बी कंटेमिनेटेड बाय द penetration of bacteria through the porous shell or from a hen whose infected ovaries contaminate the egg during egg formation. खुद उसकी ओवरी कंटेमिनेटेड थी और खुद उसकी जो यूट्रस था या जो भी जगह से एग फॉर्म हुआ था एरिया, वो खुद इन्फेक्टेड था, तो एग भी इन्फेक्टेड हो गया इंटरनली. Nevertheless, such interior eggs कंटेमिनेशन इज थ्योरेटिकली अनलाइकली होता है, लेकिन इसमें चांसेस कम है, लेकिन फिर हैं तो मौजूद है. हमने अपनी आंखों से देखे हैं, हमारे पास केसेस हैं. इवन अंडर नेचुरल कंडीशन द रेट ऑफ इन्फेक्शन वाज वेरी स्मॉल, देयर हार्डली 0.6% एंड 3% अमंग आर्टिफिशियली इन हैवली इन्फेक्टेड हैंड्स. और ये है, चांसेस हैं. आप ये कह लें कि अंडा जो है वो पाक व साफ है, ये गलत है, ये जुमला गलत है. हाँ, ये है कि चांसेस इसके हैं बहुत ज़्यादा, कि 90% से 95% चांस मान लेता हूँ ये सेफ़ है. लेकिन आप ये क्या 100% सेफ है, एग हर एग सेफ है, तो ये गलत है. दैट इज रॉन्ग. डायग्नोसिस इसको करते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट आप इलाजा या एंटीबॉडी से इसको आप नहीं पकड़ सकते. सीरोलॉजी यूजुअली नॉट डायग्नोस्टिक. साल्मोनेला के लिए करते हैं सीरोलॉजी लोग, ठीक है ना, टाइफाइड डॉट टेस्ट कहलाता है, और भी टेस्ट है. वो सारे के सारे जो है ना, वो जो है ना उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, सेलेक्टिविटी नहीं है. डायरेक्ट जो है ना वो आपको एविडेंस चाहिए होता है, स्टूल टेस्ट है या ब्लड टेस्ट है या सीक्रेशन है कोई, वहाँ से आप ये सैंपल लेके करते हैं जब, और उसमें पॉजिटिव आ जाए, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आता है और उसकी कैरेक्टर फीचर आपको मिल जाते हैं कल्चर मीडिया में, तो फिर आप कहते हैं कि भाई ये आदमी जो है ना साल्मोनेलिसिस का शिकार हो गया. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मैंने पहले ही बता दिया. इसमें इम्पॉर्टेंट तरीन ये है कि जीआई ट्रैक्ट जो है ना इसका टारगेट ऑर्गन है. ये आता है साल्मोनेला नॉन टाइफाइडल हो या टाइफाइडल हो, जो भी हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीसाइटिस कहते हैं इसको. और उसके बाद जो है ना ये लिम्फेटिक के ज़रिए स्प्लीन में जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, ब्लड में आ जाता है. ब्लड में आने के बाद बैक्टीरिया करता है. लोकल इरिटेशन से तो डायरिया हो जाएगा, लेकिन ये वापस मुड़ के आएगा और प्रॉब्लमेटिकल होगा. अगर वहीं पे गया उसे थर्ड जो है ना डिफेंस ने उसे मार दिया तो ठीक है, वो आगे नहीं जाएगा, लोकलाइज इन्फेक्शन रहेगा. लेकिन अगर फर्स्ट करें थर्ड डिफेंस पूर्ण कर लिया तो बैक्टीरिया और उसके बाद सेप्टिसीमिया, वो सारी चेन जो इन्फ्लेमेटरी चेन है वो सारी की सारी जो है ना उसमें चली जाएगी. अब हमारे क्या होता है कि हम जो इंजेक्शन भी लगाते हैं और फ्लूइड थेरेपी भी देते हैं डिहाइड्रेशन के लिए. अब इसमें आप ये देखिए कि जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जो है ना कम से कम स्टेराइल होना चाहिए. तो यहाँ पे कौन चेक करता है कि इसका स्टेरिलाइजेशन को, इसलिए उसको भी चेक करना चाहिए, लगाने वाले को जो लगा रहा है, जो आदमी आपने सप्लायर है डिहाइड्रेशन के लिए आप उसको फ्लूइड दे रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि नीडल्स और उसका इक्विपमेंट जो है वो बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, क्योंकि ये तो सेपरेफाइड है, ये तो हर जगह मौजूद है, वो वहाँ से चला जाएगा. इन अदरवाइज हेल्दी एडल्ट्स द सिम्टम्स कैन बी माइल्ड, यूजुअली देयर इज नो सेप्सिस देयर, वो जो है सेकंड डिफेंस तक रहता है, उसे किल कर देता है. तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अलावा ज़ाहिर है वहाँ तो ये बहुत सीवियर होगा, इसके अलावा पीपल को माइल्ड इन्फेक्शन ही होता है. Salmonella infection can become very serious, leading to the complication in infants खास तौर पर, causing dehydration. उनका डिहाइड्रेशन क्योंकि सर्विस एरिया बहुत कम होता है, वो सामने भी नहीं आ पाता और वो बहुत सीवियर टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं पेशेंट. और उनमें भी और बच्चों में ज़्यादा अगर डायरिया या वॉमिटिंग हुई है उनमें भी डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. लेकिन साल्मोनेला जो है ना अगर चला गया ब्लड में तो इट कैन कॉज मेनिंजाइटिस, इट कैन कॉज ऑस्टियाइटिस. स्पेसिफिकली स्पीकिंग सिकल सेल एनीमिया के अंदर
ये ऑस्टियोमिलाइटिस कॉज करता है। लेकिन ये ज़ाहिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस कॉमन ऑर्गेनिज्म है ऑस्टियोमिलाइटिस का, नो डाउट। और ख़ास तौर पे जो है ना सिकल सेल एनीमिया में ये ऑर्गेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, दैट इज साल्मोनेला, विच कैन कॉज ऑस्टियोमिलाइटिस। इसको ज़रा याद रखिएगा। तो इसको बताने का मकसद ये था कि ये एक तो इंटेराइटिस करता है, दूसरा ज़ाहिर है कि आपको पता है कि ये क्या करेगा, टाइफाइड फीवर, ये इंटायर ग्रुप ऑफ फीवर है। ये पूरा जो है वहाँ से उतारा गया है एंटायरिक फीवर, जिसको बहुत डिटेल में बताया जाएगा बाद में बात होगी। पहले तो आप इसको समझ लें जिसकी नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला। लेकिन टाइफाइड बताते खुद जो है ना वो एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम, एंटर द लिम्फेटिक सिस्टम एंड कॉज द सिस्टम फॉर्म साल्मोनेलोसिस। और इससे अच्छा जो है ना कोई भी पैथोजेनिसिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सका आज तक। बड़ी टिपिकल इसकी पैथोजेनिसिटी है एंटेरिक फीवर की। वो किस तरह से होती है, वो फेज बाय फेज होती है, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, आपको पता है ये होता क्या है, जो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। और इन द एंड ये है कि ये जो फ्लूइड इम्बैलेंस करेगा, रेप्टिकुलर इम्बैलेंस करेगा, जिससे मारा जाएगा मरीज। और बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया ये सेप्टिक शॉक करेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक करेगा, और ये प्रॉब्लमेटिकल डिजीज हो जाएगी। ये तो वो है जो डिजीज जो है ना करंट सिचुएशन में, लेकिन इसकी जो लेट मैनिफेस्टेशन है वो भी खतरनाक है। इट कैन इन्वॉल्व द किडनीज एज लग्यूरिया, लीटीमिया, इट कैन कॉज द हेमरेज, इट कैन कॉज द रप्चर ऑफ द इंटेस्टाइन। इसी तरीके से लंग्स के अंदर भी हाइपोक्सीमिया कर सकता है ये प्रोड्यूस। मतलब एक चीज़ जो है पाइमिया अगर हो गया या सेप्टिसीमिया हो तो कहीं भी चली जाएगी वो तो। और इसकी खूबी ये है कि इस डिजीज़ की कि ये करती है, अगर आपने नेचुरल हिस्ट्री ये है इस पर टाइफाइड फीवर की डेथ है, अगर आपने इंटरप्ट नहीं किया पेशेंट नेचुरल हिस्ट्री तो जाहिर है कि हम मारे जाएंगे। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इसकी, जैसे मैंने बताया कि एक तो रिमोट एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें ये है ना कि लेटर ये लिखा कि रिसर्च की गई है, वो कहा है कि बाद में यही पेशेंट जो होते हैं ये हमेशा जो होते हैं ये पेट में दर्द है, गैस है, इसकी शिकायत करते रहते हैं। इट मे बी एसोसिएटेड, नॉट ऑलवेज, विद IBS और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। Evidence, however, does not support it being a direct cause. डायरेक्ट कॉज नहीं है, इट मे बी साथ में जो है ना कोइंसिडेंस ज़्यादा चांस है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था किसी को, उसको हो गया साल्मोनेलासिस, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज थी वो सुपरेड हो गई, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये डायरेक्ट कॉज नहीं है इसकी। इसके अंदर ऑस्टियोमिलाइटिस मैंने पहले भी बताया कि साल्मोनेला का ऑस्टियोमिलाइटिस इम्पॉर्टेंट है इन सिकल सेल एनीमिया स्पेसिफिकली। Although Staphylococcus aureus is the commonest organism of the osteomyelitis in every people, इनमें खास पॉपुलेशन में एज अ सेकेंडरी इन्वेडर समझ लें आप, साल्मोनेला इज द ऑस्टियोमिलाइटिस causing osteomyelitis in the sickle cell disease. These infected people become asymptomatic carriers होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं इससे से बाहर निकल आते हैं लेकिन कैरियर हो जाते हैं, और वो भी दूसरों को जो है ना वो लगाते रहते हैं बीमारी थ्रू फीकल ओरल रूट, बिकॉज ऑफ दी वॉशिंग उनकी सही नहीं होती। प्रिवेंशन के लिए ये है कि सबसे पहले हाइजीन लोगों को बताया जाए कि भाई इसको जो है ना इतना आप जो आप खाना रख लेते हैं, बकरे काटे हैं आपने ज़िबा किए 18, 6 आपने बांट दिए, बाकी घर के लिए रख लिए और पूरे साल खा रहे निकाल के। खुदा के वास्ते ये मत करें। मैक्सिमम 3 मंथ तक तो वो चलो ठीक है, उसके बाद जो है ना उसके अंदर चांसेस हैं कि साल्मोनेला इन्वेट कर जाएगा। बिजली आती रहती है जाती रहती है, उसका पता नहीं होता। तो इसलिए जो है ना आप इसको इवन हाई अगर हीट पे भी ले जाते हैं तो फिर भी चांसेस रहते हैं। तो
खासतौर पीनट बटर वगैरह जो है जब बनाते हैं, जिसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हाई हीट जो है ना उनको नहीं मार पाती खासतौर पर। इसकी वैक्सीनेशन है कोर्स में मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे साल्मोनेला के अगेंस्ट खासतौर पे टाइफाइडल के लिए जो है ना वो तो बहुत ही मकबूल है। टीबी वैक्सीनेशन कराती है, ओरल भी होती है आजकल। एंटीबॉडीज अगेंस्ट द नॉन टाइफाइडल सैल्मोनेला फर्स्ट फाउंड इन द मरवाली चिल्ड्रन इन रिसर्च पब्लिश्ड। उसमें एंटीबॉडीज उन्होंने बताई हैं कि IgG इनमें पाया गया है। और ये जो है ना रिसर्च एंटीबॉडीज इनके अंदर that protect children against bacterial infection of blood caused by the non-typhoidal salmonella। इसीलिए अफगानिस्तान के लोग जो कचरा चुनते रहते हैं, उनको कभी एक दफ़ा डायरिया हो गया तो वो फिर दो बार डायरिया हो गया, उसके बाद वो मालूम चला कि इम्यून हो गए। अब वो जो है कचरे से चीज़ें ले लेते हैं और वो जो है जो शादी हॉल के बाहर जो होते हैं, जो चीज़ें आप फेंक देते हैं वो खा लेते हैं। यानी वो जानवर कम्पीट कर रहे होते हैं उनके साथ, ह्यूमन के साथ। अफसोस की बात है वजह इसके कि आप उनके लिए जब आपने पकाया था तो एक हांडी एक उनके लिए देख पका देते। अल्लाह ताला आपको कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो देता है, सवाब अता करता है। अफसोस की बात है ये किसी को भी ख्याल नहीं आया। इसलिए चिकन के अंदर भी ये वैक्सीनेशन होती है, इनकी बाकायदा वैक्सीनेशन होती है साल्मोनेला की। और इसी तरीके से चिकन खास तौर पर आइटम्स की बहुत मकबूल है अमेरिका में, उसमें तो डेफिनेटली चिकन वैक्सीनेशन तो उसके बगैर जो है आप मूव नहीं कर सकते प्रोडक्ट को फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म टू द ट्रांसपोर्टेशन। पहले तो वो सर्टिफाई करेगा, फिर उसके बाद उसको साइन करेगा उनका आदमी, फिर वो उसको रिसीव करेगा, फिर वो लेके जाएगा जहाँ उसको लेके जाना है, फिर वहाँ से रिसीव कराएगा। कि अगर वो पॉइजनिंग हो गई, पहले भी इनके आदमी मारेगा जा चुके हैं। अब तो बहुत एहतियात से FDA जो है ना, CDC जो है ना, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब इसकी डायरेक्ट वैक्सीनेशन तो नहीं होती है, इनडायरेक्ट की तो होती है, लेकिन नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला की हर जगह वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सब स्पीशीज़ है इसमें। तो इसका जो है ना एक जनरल आपको साल्मोनेला का जो आइडिया देने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए। और ट्रीटमेंट जाहिर है कि इसके अंदर जो है ना जनरल मेजर्स हैं, आप इसकी हाइड्रेशन दुरुस्त करें, इसकी जो है सॉल्ट रिप्लेसमेंट करें, इसके अंदर एसिड बेस बैलेंस को की तरफ देखें। स्पेसिफिक ड्रग इस्तेमाल हो सकती है, सेफ्ट्रैक्सोन है मिसाल के तौर पे, अगर वरना ये कि क्विनोलोन्स ओरल जो है वो काफ़ी है, आप दे सकते हैं। इसमें एमॉक्सिसिलिन ओरल दे सकते हैं, ऑगमेंटिन दे सकते हैं अगर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वही है कि ओवर द काउंटर ड्रग चुके ये हैं सारी ड्रग्स, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। आने वाले दिनों में ये हुआ है, 10 साल हो गए हैं कि अब जो है ना जो ड्रग्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस एंटेरिक फीवर की अब नहीं रही, सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस भी फेल हो गई, थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस भी फेल हो गई। अब वो ड्रग जिनको हमने 1974 में इस्तेमाल किया था, प्रोफेसर बिल्लू होते थे हमारे प्रोफेसर पीडियाट्रिशियन, बाबा है समझने पीडियाट्रिक्स, वो करते थे फ्यूरोजोलिडोन टाइफाइड फीवर या नॉन टाइफाइड अर्थाइमिस, मुझे याद है अभी तक। और वो देते थे ड्रग्स सल्फामेथोक्साजोल टाइमेथोप्रिम इन मरीजों को, बच्चों को छोटे, और उनमें उनको फ़ायदा हो जाता था। अब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो फिर वो नई ड्रग भी आ गई, बात ख़त्म हो गई। अब ये दवाएं दोबारा नए सिरे से खड्डा खोद के आपने निकाली है कि फ्यूरोजोलिडोन भी इफेक्टिव है, इसी तरीके से क्लोराम्फेनिकोल जो बंद कर दिया गया था वो भी इसमें दिया जाता है। अगरचे इस्तेमाल कॉमन नहीं है लेकिन दिया जाता है मजबूरन, क्योंकि जब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस, थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस का, तो फिर वो खड़े जो कब्र में दफना दी गई थी दवाएं उनको बाहर निकाला गया। इसके अलावा जो है न्यू ड्रग जो अभी इन्वेंट हुई हैं उनमें मैक्रोलाइट्स हैं थर्ड जनरेशन और लेंजोलिट्स वगैरह, ये इस्तेमाल अभी कर रहे हैं लोग, इस पर रिसर्च जारी है। उम्मीद है कि आपको डिस्कशन आपके लिए कारआमद होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।